And as the Assam Assembly scrapped the 2-hour namaz break for Muslim legislators, former Bihar Deputy Chief Minister and Rashtriya Janata Dal leader Tejasvi Yadav has called Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma a quote-unquote Chinese version of Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath. BJP has slammed RJD and said, and I'm quoting now, this reflects the racist mentality of the India Alliance, and it seems Sam Pitroda has taken over the mind space of Tejasvi when he makes such racist comments. Let's listen into the reactions. कौन क्या बयान देते हैं उससे थोड़े हमारा काम रुकेगा। हमारा काम तो सरायवती आगे ही जाना है। The nature of the comments made by the leaders like Tejasvi Yadav, who compares elected popular Chief Minister of Assam, Himanta Biswa Sarma, to Chinese version. Is he being called Chinese because he's from Northeast? This is a racist comment. The Atma of Sam Pitroda entered Tejasvi Yadav. So they don't care about Northeast or the people. This is an insult not just of Chief Minister of Assam, but of people of Assam and entire Northeast and India. Such racist comments should not be accommodated. Rahul Gandhi must tell us his stand on Tejasvi Yadav. And my colleague Arun Dhanta is joining me on the broadcast. Arun, while the Bharatiya Janata Party can slam Tejasvi Yadav, what will they do with JDU? Because both these Bihar parties are criticizing Himanta Biswa Sarma's government's decision. Well, that's right. Ever since this decision was taken by the Assam Assembly, we are seeing there have been multiple reactions coming which are opposing this decision of Himanta Biswa Sarma. And Himanta Biswa Sarma is somebody whom we know that he is known to take those bold decisions and bold statements. In fact, last week also that Muslim marriages registration and divorce bill was also passed in that assembly. That also got some criticism for Himanta Biswa Sarma. But here he is somebody who is not deterring from these criticisms. And in fact, in this bite, he also reiterated that we will do our work, whatever people may say. But as far as you asked about the allies of Bharatiya Janata Party, yes, that has been a problem for the party, and that is a problem when you are not a full majority government. And this is not for the first time when we are seeing some sort of reaction against the decision of the Union government coming from the allied side, whether it is work bill sending to the Joint Parliamentary Committee or the lateral entry in all these decisions. Right, Arun, just give me a moment, please, because Shakti Yadav of RJD is also with us on the broadcast. Shakti ji, Tejasvi Yadav ji ने क्रिटिसाइज किया हिमंता बिस्वा शर्मा को, उनको योगी आदित्यनाथ का चाइनीज वर्जन बताया. इसको भारतीय जनता पार्टी रेसिस्ट कमेंट कह रही है. ये कह रही है कि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट से हैं, इसलिए उनको चाइनीज कहकर रेसिज्म का अटैक लग रहा है तेजस्वी यादव पे. देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा जी का जो एक्शन हुआ धर्म विशेष के खिलाफ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है. संविधान इसकी इजाजत नहीं देता. संविधान के अनुसार इस देश के अंदर में चाहे कोई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या बौद्ध हो, जैन हो, हर का यह देश है. ये देश किसी की जागीर नहीं है. अपने मन से किसी को टारगेट करिएगा, आपका एक्शन क्या होता है, किसको हर्ट कर रहा है, ये चीजों को देखना है. आप हेड ऑफ द गवर्नमेंट है. हेड ऑफ द गवर्नमेंट होने के नाते आपको स्टेट के डेवलपमेंट पे बात करनी चाहिए. वो ऐसी चीजें जो नहीं होनी चाहिए आप वो कर रहे हो. जो आदित्यनाथ, आप दोनों में कंपटीशन हो गया है. तो अगर वर्जन बताया है चाइनीज वर्जन, तो क्या गलत कहा? तो चाइनीज आप उसी एक्शन को रिप्ले करिएगा, अपने यहाँ करिएगा, तो स्वाभाविक तौर पर ये सवाल खड़े होंगे. आपने कोई विकास की बात, देश की बात, मॉडल की बात कभी आपने की नहीं. कभी आप मुसलमान की बात करते हो, कभी नमाज की बात करते हो, कभी टोपी की बात करते हो, कभी दाढ़ी की बात करते हो, और कभी घुसपैठी करते हो. घुसपैठी अगर हो रहा है किसी के देश के अंदर में, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? 10 साल से सत्ता के अंदर. शक्ति जी, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम किसी को रोक नहीं रहे हैं नमाज अदा करने से. हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि असेंबली में हर आदमी तो जाकर नमाज अदा नहीं कर रहा, तो 2 घंटे का ब्रेक क्यों? जिसको नमाज अदा करना है वो जाकर कर ले. 2 घंटे के लिए असेंबली बंद क्यों करना है? आप एंकर हैं, इतनी सबको पता है. हम लोग भी सदन में रहे हैं, हम लोग भी एमएलए हैं, तो हम लोग को जानकारी है इन चीजों के बारे में. कि जब सदन की कार्यवाही ध्यानाकर्षण के बाद जब भोजनावकाश होता है तो 2 बजे होता है. ये सबको पता है कि जो उस धर्म के मानने वाले लोग हैं, तो 1 बजे से 1:30 बजे से उनकी नमाज 2 बजे तक रहती है. तो उसको ब्रेकअप में जानबूझ करके शुक्रवार को रखा गया है. तो अगर शुक्रवार को किसी नमाजी के लिए, किसी धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के लिए
अगर उतनी रियायत है तो आपको परेशानी किस बात की? इस परंपराओं से अलग एक इतर रास्ता तैयार कर करके नफरत की राजनीति क्यों करना चाहते हो? मेरा आखिरी सवाल शक्ति यादव जी, जेडीयू के लोगों ने भी इस मामले में हिमंता बिस्वा शर्मा को बहुत क्रिटिसाइज किया है, तो जेडीयू के इस बयान पर आरजेडी क्या कहना चाहती है? देखिए, जनता दल वक्फ के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी के कदम में कदम मिलाकर करके साथ दिया, तो इनका ये चेहरा खुल चुका है, ये भयभीत है और इन लोग को पूरा क्रिटिसिज्म हुआ है। बिहार ही नहीं, देश भर में नीतीश कुमार जी अचेत नायक हैं। मैं नहीं कहता, पूरा देश कहता कि अचेत नायक हैं। इनको खुद पता नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूं और आने वाला कल क्या है, फिर क्या होगा, क्योंकि शागिर्द के सहारे भी चल रहे हैं। तो मैं तो एक लाइन में जानता हूं कि जनता दल का आइडियोलॉजी वही है जो भाजपा की आइडियोलॉजी है। भाजपा की आइडियोलॉजी से इतर जनता दल का क्या एक्शन बता दीजिए। जब वक्त के सवाल पर आपकी सहमति बनी, उसके आधार पर कि बाह्य व्यक्ति को मेंबरान के रूप में रखा जाएगा, आपने सहमति व्यक्त की, पूरा क्रिटिसिज्म हुआ, आपकी भद पिटने लगी, तो आप अलग से हेमंत बिस्वा शर्मा के सवाल पर आप राग अलाप रहे हो। तब खुले तौर पर बोलो। हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी के, उन निर्णयों के खिलाफ सीधा अटैक करो। अब सत्ता में भी रहना चाहते हो, अपना दो मुहा चेहरा भी दिखाना चाहते हो, दोनों एक साथ नहीं चल सकता। ऑल राइट, शक्ति यादव ऑफ आरजेडी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो दैट वाज द आरजेडी स्पोक्सपर्सन अटैकिंग बोथ द हिमंता बिस्वा शर्मा गवर्नमेंट इन Assam as well as criticizing the JDU for what the RJD says are a two-faced political stance that the party is taking. Arun Dhanta still here with me. Arun, sorry I had to cut you short there, but you were explaining to us how Bharatiya Janata Party is trying to balance out its allies whose sentiments seem to be different from the BJP's line. Okay, I've lost that line with Arun. I'll try and reconnect. But there are a lot of political reactions to this story. Let's dip in. मैंने देखा हिमंता बिस्वा शर्मा असम के चीफ मिनिस्टर ने जो कहा कि अब जो असेंबली में 2 घंटे की इजाजत मिलती थी जुम्मा के दिन मुसलमान एमएलएस को नमाज पढ़ने की, वो रद्द की गई। मेरा ये मानना है कि सरासर असंवैधानिक है, ये राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन का उल्लंघन है। और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। कभी वक्फ बोर्ड का आ जाता है बिल, कभी सीए एनआरसी का आ जाता है बिल। किसी न किसी प्रकार से ये माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक को ये भाजपा के लोग तंग करना चाहते हैं। कब तक यही मतलब यही राजनीति करते रहेंगे, हिंदू मुसलमान की राजनीति? इससे किसी का पेट भर रहा है, इससे रोजगार बन रहा है, इससे लोग तृप्त हो रहे हैं।